Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star hotel जैसा bathroom with Hindware Italian collection. Check into luxury. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है फर्रुखाबाद की मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यहाँ पे खड़े हैं, जिसको डंपिंग यार्ड भी कहा जाता है, सेग्रीगेशन पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे श्री विजयपुरम शहर का तमाम कचरा जो है यहाँ पर आता है, जमा होता है, उसको अलग अलग किया जाता है, फिर उसको किस तरीके से कैसे डिस्पोज करना है वो यहीं से किया जाता है। आज यहाँ पे हम आपको बता दें कि हमारे श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के स्टाफ और सैनिटरी वर्कर्स एकत्रित हुए हैं, ताकि वे जो हैं कलकत्ता इंटरनेशनल स्कूल से आए 20-21 बच्चे उनके साथ मिलकर यहाँ से जो सटी समुद्री तट है इसको थोड़ा साफ सफाई करेंगे, ताकि इन बच्चों को साफ सफाई का महत्व पता चले। हम आपको बता दें ये जो कार्यक्रम है ये HAB यानी कि हियर एंड बियॉन्ड, ये एक NGO है, उनके सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें अपनी पूरी सहकारिता जो है राष्ट्रीय लाइफ सेविंग सोसाइटी ऑफ इंडिया उनके द्वारा भी दी गई है, और इन तीनों के कोलैबोरेशन से इस छोटे से कार्यक्रम का अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया है, जहां पे बच्चों को ये पता चले कि हम जो गंदगी करते हैं छोटा मोटा कचरा समझकर, आखिर में बाद में वो जमा होकर कितना बड़ा कचरा बनता है कि वो हमारे सुंदर समुद्री तट को ख़राब करता है, और फिर उसको सफाई कैसे किया जाता है, कैसे उसको अलग अलग करके कलेक्ट किया जाता है और फिर डंपिंग यार्ड में भेजा जाता है। तो ये सारे प्रोसेस को समझाने के लिए, और साथ ही सबसे बड़ी बात बच्चों के दिलो दिमाग में जो है साफ सफाई को लेकर उनको एजुकेट करना, ये इस मकसद से यहाँ पे इस कार्यक्रम को रखा गया। तो चलिए हम सीधे इसकी कवरेज के लिए आपको ले चलते हैं। Respected faculties and dear children of Calcutta International School, right? On behalf of Shri Vijayapuram Municipal Council, myself Ahmed Zaki, Executive Engineer, Solid Waste Management, and it is our responsibility to keep our island neat and tidy. BMC has made some sort of planning and designing how to pick the garbage which we are generating every day, right? We are generating two types of garbage. One is wet, another is dry. One is degradable, another is non-degradable, right? In that, the food waste what we are generating every day, the waste we are generating, that has to be attended separately, and the other waste, that is our plastic bottles, recyclable goods, glass bottles, and all other articles which comes under the dry waste, that has to be collected separately. You might have seen one MRF here, that is material recovery facilities. I'm going to show you that also, how we work on that, right?
These are the important features of our this thing. As on date, we are having 60 plus metric tons of garbage in Port Blair. That has to be attended on daily basis, and we are doing it. You might have seen the area is almost clear. In Port Blair, the Port Blair area is completely clear. You may not have garbage on roadsides like mainland and other places. We are trying our level best to improve day by day, day by day, day by day. We were on a forest walk and an independent walk, and there is a place called the Secret Beach. When we went there, we could find bottles and plastic waste, I think, which had flown in through the wind during monsoons from Thailand and Cambodia and places like that. Sir, do we have a concrete plan that we can stop it somehow? And there was an observation of the whole group that if we live in one country and we are using plastic resources, that country is not the only country which is getting polluted, the whole planet is getting polluted. In Andaman and Nicobar Islands, I always find a lighter that has been used. So what do you have to say about that? Plastic. It's a toxic gases, right? It has to be processed properly. And again you have to recycle it and to produce another type of substance. How much of a difference it will make if we from our side try to properly segregate the garbage and do it? Will that help you, and can we from that anyway help back to the community also? Beaches where there are a lot of tourists and a lot of civilians, those beaches will end up like building up a lot of plastic because people will be throwing a lot. So maybe lifeguards could be given the ability to. They do find people. One of the main roles is Others, beach staff have that power, Exactly. right? You are the future, and the future of our planet lies with you. If you don't know where your garbage, which is the biggest thing that is making our planet sick, if you don't know where that goes and what happens to it, then we have a very bleak future for our planet. ये सब वो लोग हैं जो अब मैं कैसे कहूँ इनके बारे में, जो अपनी जान को खेलकर जो इस धरती को बचाने के प्रोजेक्ट में, द पीपल हु आर देयर टू सेव द प्लैनेट अर्थ, दे आर द फ्रंट लाइनर्स. Without them, nothing is getting clean. Everything we throw in the bins, everything we throw, every plastic we generate, and these are the people who are willing. They are the part of the society. They can do X number of jobs. वो कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में. But they have taken on the responsibility to take that role in the society and make sure that the society and the environment and the planet Earth is clean. Can we have a round of applause for them, please? Thank you, भैया. तो अभी हम तनाज नोबल जी से बात करेंगे, जो राष्ट्रीय लाइफ सेविंग सोसाइटी ऑफ इंडिया एक एनजीओ है, उनकी सेक्रेटरी हैं. और ये जो यहाँ पे सफाई अभियान चल रहा है यहाँ पे, इसका क्या मकसद है और डिटेल्स हम मैम से ही जानेंगे. जय हिंद मैम. जय हिंद सर. सो हम यहाँ पे बच्चे को इसलिए लेकर आए हैं इज़ बिकॉज इतने सारे टूरिस्ट आते हैं हमारे अंडमान टू विज़िट, और इतना खूबसूरत सा जगह है, प्रिस्टीन एकदम, ये जो पोस्ट कार्ड जैसा लोकेशन है. लेकिन वो कभी ये नहीं देखते हैं कि उनका जो गार्बेज वो जनरेट करते हैं वो कहाँ जाता है. उसका वेयर डज इट एंड अप, उसी पानी में, उसी ओशंस में जो वो मतलब क्लीनलीनेस, प्रिस्टीननेस सोच के यहाँ पे आए हैं उसको देखने के लिए. ओके, तो वहीं पे वापस जा रहा है. सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि वो सोचे कि हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए हमारा गार्बेज. जो हमारा कोस्ट लाइन एरियाज में हम अगर गार्बेज ज़्यादा जनरेट करेंगे तो वो वापस समुंदर में ही जाने वाला है, और हम ये जो ब्यूटी है ये ख़त्म हो जाएगी. मैम, वाई चिल्ड्रन फ्रॉम कैलकाटा इंटरनेशनल स्कूल, वाई नॉट यहाँ के स्कूल के बच्चों को भी इस बारे में बताया जाए? डेफिनेटली हमारे स्कूल के बच्चे को डेफिनेटली, लेकिन टूरिस्ट जो है वो समझते नहीं. जब किसी और के घर जाते हैं, इफ यू टेल देम कि आप अपने जूते बाहर छोड़ दीजिए तो वो करेंगे. अगर आप कहोगे कि आ जाओ, थूक मारो, जूते लगाओ, दे विल डू दैट. So you have to lay the rules down for tourists and the behavior pattern. तो अगर हम यहीं से उनको इंट्रोड्यूस कर दें कि ये होता है, this is the underbelly of tourism. Okay, then they will think. ये बच्चों का कैलकाटा इंटरनेशनल स्कूल के जो बच्चे यहाँ पे आए हैं, they are almost like 20-21, right मैम? Yes.
या तो ये इनका स्टडी टूर था एक्चुअली। इट इज़ एन एजुकेशनल टूर। राइट। तो मतलब मैनग्रोव्स के बारे में सीखने के लिए वो फिर से हम मेरे पास आए, पूरा मैनग्रोव्स वो प्लांट किए हमारे जो प्रॉपर्टी है वहीं पे, एंड वेस्ट तक कीचड़ में दे वर वॉकिंग एंड प्लांटिंग द मैनग्रोव्स एंड दे वर वेरी हैप्पी, दे वर वेरी एंथुसियास्टिक। एंड दिस वाज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम और This is part of the program. This is part of the education program. एक्सेलेंट मैम, हम अप्रिशिएट करते हैं नोबल मैम का, जिन्होंने एक स्टडी टूर यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया है कैलकाटा इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों का, जहाँ पे घुमाने फिराने के साथ साथ में उनको साफ सफाई का महत्व भी बताया गया है, और ये साफ सफाई कैसे किया जाता है, ये गंदगी कैसे होती है, इस बारे में भी मैम ने बच्चों को जागरूक किया है। अगर बच्चे इस उम्र में जानेंगे कि सफाई कितनी ज़रूरी होती है हमारे पर्यावरण के लिए, और इस तरीके से अगर हम गंदगी फैलाते हैं समुद्र में ये सोच के कि ये तो हम बाहर फेंक रहे हैं, अपने घर से बाहर फेंक रहे हैं, तो नहीं, ये जो है घूम फिर कर हमारे ही पर्यावरण को, हमारे ही वातावरण को खराब करता है, जिससे हम बीमार भी पड़ते हैं, और एक अच्छा खासा बीच जो सुंदरता का प्रतीक होता है वो खराब भी होता है। तो अभी आपने जो समुद्री तट में देखा किस तरीके से हमारे सफाई मित्र जो श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल में काम करते हैं, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि हमारे घरों के जो कूड़ा कचरा है उसको भी उठाते हैं और कूड़ा जमा करते हैं। तमाम पूरे शहर में जगह जगह जाके, हर गली मोहल्ले में जाके, बीच सड़क में जाके, रात बेरात दिन दहाड़े हमारा जो कचरा जो हम फेंकते हैं उसको जमा करते हैं। ये हमारे सफाई मित्र हैं जिनको हम पूरे दिल से सलाम करते हैं, और इनके हम ऋणी हैं, क्योंकि इन्हीं की मेहनत की वजह से जो है हमारा श्री विजयपुरम शहर जो है इतना साफ़ सुथरा रहता है। इन्हीं की ज़ुबानी हम जानना चाहेंगे कि आज का ये जो अभियान था बच्चे लोगों को प्रेरित करने के लिए, उसमें आप लोगों ने भी साथ दिया, कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? बस सर यही कहना चाहूँगा कि हमारा ये साफ़ सुथरा शहर को साफ़ सुथरा रखना ही हमारा काम है, और आज का ये जो भी अभियान चला है, एक मैसेज देना चाहते थे हम लोग कि ये हम लोग को सिटी को कैसा साफ़ सुथरा रखना है। समुद्र में जो है कचरा वगैरह पूरा आ रहा है, उसको हम लोग साफ करने में हम लोग भी लगा पड़ा है, लेकिन आज जो टीम आया बड़े से बहुत हम लोग भी साथ दिया, हम लोग भी साथ दे के कर रहे हैं। आप लोगों ने क्लीनिनेस ड्राइव किया, इसको लेकर आप आइलैंड के बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? तो मुझे लगता है ये हमारे लिए, हम सब के लिए काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था। हमने ऐसा कभी नहीं किया था। हमें ये करने के बाद असल समझ मिला है कि प्लास्टिक से क्या दिक्कत हो सकता है। मुझे ये समझ आया है कि हमें प्लास्टिक के दूसरे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना चाहिए। But I feel like everyone should kind of get the experience of this overwhelmness like in our senses, because we truly need to understand that every little tiny action that we do that is bad can accumulate to a bigger negative problem in the future. It's like we have one earth. It's like we have one opportunity, one life to save it and make sure we do the most we can and take care of it, and also appreciate everybody, everything that we get and whoever is doing so much work. मुझे रियलाइज़ हुआ है कि जो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं भी कभी कभार लिटर करता हूँ, सब करते हैं, तो जो इसका असली इम्पैक्ट है आज दिख रहा है। और हम इंसान अकेले नहीं हैं, यहाँ पे बहुत जानवर भी हैं, उनको भी अफेक्ट होता है, और मेरीन लाइफ भी। and the people here who are putting all the efforts day and night trying to help us, trying to help save the environment, I feel that we should do whatever we can to. After seeing how hard these workers work to be able to for me to be able to live my life in peace and litter free, I've realized that these people have given their lives up for this cause. These people are no different from freedom fighters. They deserve the same respect that we give to our army and any other government leader. थैंक यू सो मच। चलिए अभी हम हियर एंड बियॉन्ड जो एनजीओ है जिनका आज इस सफाई अभियान में बहुत बड़ा सहयोग रहा है, उनके फाउंडर डायरेक्टर श्री अभिमन्यु शर्मा जी, हम उनसे बात करते हैं और आज के इस पर्पस को उन्हीं के जुबानी जानेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद सर। आज हमारा मिशन ये रहा है कि बच्चे जो पिछले 4 दिन से अंडमान निकोबार की ब्यूटी देख रहे थे उसका एक डार्क साइड देख पाएँ। डार्क साइड बोले तो ये सब जितना कूड़ा कचरा यहाँ का टूरिस्ट, यहाँ का सोसाइटी जनरेट करता है, उसका हमारे इकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट रहता है। तो बच्चों को यहाँ लाने का एक मिशन ये था कि वो देख सकें और समझ सकें
कि जो आइलैंड स्पेसिस है हमारी कंट्री की, वहाँ पर इसका क्या इम्पैक्ट है, और लैक ऑफ रिसोर्सेज और लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फंड्स एंड एनजीओज की वजह से कितना स्ट्रगल और कितनी मेहनत करती है एक छोटी सी टीम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। और हमारा मेन एम ये है कि हमारे साथ और लोग जुड़ सकें, मेनलैंड से लोग जुड़ सकें, ये बच्चे लोगों को प्रोत्साहित कर सकें, बच्चे सोसाइटी को अवेयर कर सकें, जिससे सोसाइटी और एक्टिवली इन्वॉल्व हो और हम इस गार्बेज मैनर्स को और इसको ठीक कर सकें, और बच्चे खुद कुछ नए आइडियाज, कोई आउटपुट, बहुत ही सस्टेनेबल सोल्यूशन कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। अभिमन्यु जी, थैंक यू सो मच, एंड आपके जो जज्बे हम उसको सलाम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस मकसद से आप बच्चे को यहाँ पे लाए हो ये फ्यूचर में लंबे समय तक चलेगा। थैंक यू। चंद शब्दों में आप कुछ कहना चाहोगे? आज का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहने वाला है हमारे बच्चों पे भी और हम पे भी। हमें कुछ चीज़ें समझ आ चुकी हैं कि बस चीज़ों का फ़ायदा उठाने से नहीं चलेगा, हमें कुछ वापस भी छोड़ना पड़ेगा, और हम लोग ध्यान रखेंगे इसका। सुंदर बीचेस वगैरह होते हैं, उनके साथ जो वेस्ट जनरेशन होता है उसको हम इग्नोर करते हैं। जो टूरिस्ट आते हैं वो अंडमान के ब्यूटी को तो देखते ही हैं, बट जो डार्क साइड है उसको काफ़ी बार इग्नोर कर देते हैं। पूरी ज़िंदगी हम लोग प्लास्टिक यूज़ किए, बस ये एक मोमेंट एक चांस था हम लोग के लिए वो पाप को मिटाने के लिए, जिसके लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। चलिए, अभी हम अजीजुर रहमान जी, वार्ड नंबर 6 के काउंसलर, जो साफ सफाई अभियान कहिए या बच्चों का स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कहिए, वहाँ पे बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। आज यहाँ पर भी उनका काफ़ी सहयोग रहा है बच्चों के साथ में। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज इस क्लीननेस ड्राइव को लेकर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं सबसे पहले तनाज नोबल और उनके साथ जो हमारे कैलकाटा इंटरनेशनल स्कूल के जो स्टूडेंट्स बच्चे आए हैं यहाँ पे हमारे आइलैंड को विज़िट करने के लिए, और इन्होंने एक बीच क्लीनिंग के लिए जो है अप्रोच किया पोर्टब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल को, और हमने सब मिलकर जो आज बीच क्लीनिंग किया है यहाँ पर वृक्षाबाद के बैक साइड वाले बीच पे। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे गंदगी, यानी कि ये नेचुरल फ्लो होकर ही आता है, अलग कंट्री से भी आता है। और ये बच्चे जो आए हैं ये समाज को एक मैसेज देने के लिए कि कलकत्ता जैसे सिटी से हमारे आइलैंड में आकर घूमने का ही है, इनका स्टडी टूर है, बट इसके साथ ही साथ जो है इन्होंने जो ड्राइव करके दिखाया ये हमारे आइलैंड के और टूरिस्ट के लिए जो है एक लेसन है, एक सबक है कि जब भी इधर आए तो हम प्लास्टिक जो है कम यूज़ करें, और जो है कोई भी चीज़ खा पी कर जो है सड़क पे या कहीं पे ना फेंके। और अपने आइलैंडर्स को भी अपने रिक्वेस्ट है कि हम पोर्टब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल जो है सारे फैसिलिटीज़ दिया है वार्ड में, हर घर में 2-2 डस्टबिन दिया है, प्रॉपर हमारे सफाई मित्र जो है जाकर जो है वहाँ पे घर से सूखा और गीला कचरा लेकर आते हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि सूखा कचरा और गीला कचरा जो है, ड्राई और वेट वेस्ट जो है अलग अलग करके दे, कि हमारा भी सफाई मित्र के ऊपर में जो कोई ज़्यादा वर्कलोड ना हो और वो भी स्वस्थ रहे। और बहुत अच्छा लगा, इनकी टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि कैलकाटा इंटरनेशनल स्कूल के सभी बच्चों को कि जो हमारे साथ में जुड़े। थैंक यू सो मच। तो ये था आज का जो सफाई अभियान हुआ है, इसका समापन, और ये कैलकाटा इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने यहाँ से बहुत कुछ सीख कर गए हैं। काफ़ी धन्यवाद भी करें कि उनको ये अवसर मिला है कि वे जो हैं समझ सकें कि उनके जो छोटे छोटे कचड़े के टुकड़े होते हैं उनको फेंकने से कैसे गंदगी मचती है। वैसे तो जब ये पर्यटक घूमने आते हैं तो यहाँ की सुंदरता को देखकर पर्यटक स्थल पर जाते हैं, कितना सराहते हैं, मगर पीछे छुपी जो हकीकत है, गंदगी है, कहाँ पर जमा होती है, कैसे होती है, किन वजहों से होती है, ये जानने का बच्चों को एक अवसर प्राप्त हुआ, और इसको कैसे बचाया जा सकता है, ये जो है तनाज नोबल जी एंड हियर एंड बियॉन्ड NGO, इनके जो अफसर्स हैं, इन लोगों ने बच्चों को बताया, जो कि काफ़ी काबिल तारीफ़ है। हमें इसी तरीके के ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम कराते रहने पड़ेंगे, खासकर हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि अगर बच्चे जागरूक रहेंगे तो वही हमारे भविष्य है। अगर हमें अपने भविष्य को साफ सुथरा रखना है तो फिर इन बच्चों को हमें जागरूक करना है। आज एक जो उदाहरण यहाँ पे सबके सामने रखा है, ये अगर बच्चों के दिल और दिमाग में बैठ गई तो ये लंबे समय तक इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ चंद बच्चों के लिए नहीं है, जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो कृपया करके जिन्होंने भी आज माइक पर अपनी अपनी बातें रखी है, अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, उन बातों को ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिए कि कितना महत्वपूर्ण है हम लोगों को अपने समाज को साफ सुथरा रखने के लिए, और इसके लिए क्या ज़रूरी कदम हमें उठाने चाहिए। अंत में धन्यवाद करते हैं श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के तमाम सैनिटरी वर्कर्स का, उनके अफसर्स का, और साथ ही हियर एंड बियॉन्ड NGO और
राष्ट्रीय लाइफ सेविंग सोसाइटी ऑफ इंडिया के तमाम जो स्टाफ हैं उनका भी, जिन्होंने इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद। Subscribe, press the bell icon and stop using plastic.